Hello students, here is your Krishna ma'am and today we will talk about your chapter 8 Land and the People. In this chapter we will study the characteristic of some regions of the world to understand the lives of the people within different natural ecosystem. We know that in the world there are different climatic regions and the life of people will also be differ in these areas. Mainly in this chapter, we will talk about three different climatic regions: deserts, grasslands and river basins. First of all, life in desert. What is a desert? A desert is a region having extreme temperature and low amount of rainfall and scanty vegetation. यानी desert वो place होता है जहाँ temperature extreme होता है, मीन्स या तो जहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ती होगी, असहनीय गर्मी होगी, टेम्परेचर बहुत हाई होता होगा, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर जहाँ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो, साल के ज़्यादातर महीने जहाँ बर्फ़ ही गिरती हो और जहाँ बारिश भी कम हो और वेजिटेशन भी बिल्कुल ना के बराबर हो. एंड डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप, कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट डेजर्ट. In this we will talk about the Sahara Desert. Sahara is the world's largest and hottest desert and it covers almost the entire northern part of Africa. The only source of water in the Sahara Desert is the Nile River and sand dunes are quite common in this region and it is a region of hot and dry climate and the average annual rainfall is less than 20 centimeter and it is very hot during the day whereas the nights are cool. मीन्स गर्मी तो यहाँ होती ही है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर रेत के टीले मिलते हैं, सैंड ड्यून्स मिलते हैं, लेकिन इससे भी अधिक यहाँ दिन और रात का टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. दिन में जहाँ टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है, सेम नाइट अगर हम देखें तो टेम्परेचर डिक्रीज होकर 10 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है. एंड द इम्पोर्टेंट ट्रीज आर कैक्टस एंड डेट पाम. डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट हियर. बोथ एनिमल्स एंड पीपल ईट डेट्स. द sap of date tree is used for making wine. And the seeds of date fruits are crushed and used as fodder for the camels and goats. Most of the land is barren and uninhabited and density of population is low. Population is mainly concentrated near the water bodies like oasis. पॉपुलेशन यहाँ बहुत ही कम है, या तो नील के आसपास, नील नदी के आसपास ज़्यादा है, या फिर जहाँ जहाँ सैंड ड्यून्स में जहाँ ओएसिस बनते हैं, तो रेत के टीलों के बीच में जहाँ कहीं कोई वाटर बॉडीज़ है, पॉन्ड्स वगैरह है, तो उसके चारों ओर भी बस्तियाँ बस जाती है. इनको ओएसिस कहते हैं. पॉपुलेशन या तो रिवर बैंक के पास ज़्यादा है या फिर ओएसिस के पास. पीपल प्रीफर वाइट एंड लूज क्लोथ्स टू बियर द हीट. क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए लोग सफ़ेद और ढीले ढाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं. नाउ नेक्स्ट लद्दाख. लद्दाख इज़ द कोल्ड डेजर्ट एंड लद्दाख इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हमारे देश के जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लद्दाख फैला हुआ है एंड इट इज सिचुएटेड एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड एंड इज कवर्ड विद स्नो फॉर मैनी मंथ्स. ऊंचाई पर है इसलिए ज़्यादातर साल के ज़्यादातर महीने यहाँ बर्फ़ गिरती रहती है and the temperature is very low for a major part of the year and the average annual rainfall is only 8 centimeter. And the common animals here are sheep, mountain goat and yak. The soft wool of mountain goat is used for making expensive pashmina shawls and yak is the most important animal here and it gives milk and is also used for the transportation also. The main river of Ladakh is the Indus and population is mainly concentrated near the river bank. And agriculture is the main occupation of the people in Ladakh and people grow crops like barley, millets, beans, etc. And people also grow fruit like apple, walnut and apricot also. And now life in temperate grasslands. In temperate zone where climatic conditions are moderate, the grasslands are more common.
and they are known by different names in different continents. For example, prairies in North America, pampas in South America, steppes in Asia and Europe, downs in Australia, and veld in Africa. And in this chapter, we will talk about two temperate grasslands, the prairies and the veld. First of all, the prairies. The grasslands in North America are known as prairies, and they cover a large area of USA and Canada. यानी USA और कनाडा में जो ग्रासलैंड्स फैले हुए हैं इनको प्रेरी कहा जाता है. And the prairies have a continental type of climate. Summers are hot and winters are cold. यहाँ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है. कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट मीन्स जो महाद्वीपीय जलवायु, जहाँ सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो और गर्मियों में गर्मी भी ज़्यादा हो. इस तरह के क्लाइमेट को एक्सट्रीम क्लाइमेट या कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं. एंड the rainfall is not sufficient for the growth of trees, so different type of grasses can be found here, and in some places grass grow taller than a man. The common animals here are jackal, rabbit, deer, dog, etc., and large herds of bison are also found in the prairies. Now, a large part of prairies is being converted into agricultural land, and the main crops are wheat, corn, oat, etc. The farm are big in size, and the work is mostly done with the help of machines, and this type of farming is known as extensive farming. प्रेरीज के घास के मैदानों को ज़्यादातर अब कन्वर्ट कर दिया गया है फील्ड्स में, और कई सारी क्रॉप्स यहाँ उगाई जाती है, लेकिन सबसे मेन क्रॉप है व्हीट, गेहूं की खेती. और यहाँ किसानों के पास बड़े बड़े फार्म्स हैं. 300 से 400 हेक्टेयर ज़मीन प्रति किसान यहाँ होती हैं, और इंटरनेशनल मार्केट के लिए यहाँ गेहूं की खेती की जाती है, और बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से की जाती है, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ कम है और जो खेत हैं वो काफ़ी बड़े हैं. और इस तरह की जो फार्मिंग टेक्निक है उसको एक्सटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है. द पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड अराउंड व्हीट ग्रोइंग एरियाज और रिवर्स. द मिसिसिपी रिवर इज फाउंड हियर. या तो मिसिसिपी नदी के किनारे ज़्यादा पॉपुलेशन है, या फिर जो व्हीट ग्रोइंग बेल्ट है वहाँ पर. नाउ नेक्स्ट, द वेल्ड्स. इन साउथ अफ्रीका द ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड वेल्ड, and it covers the southern part of Africa. The main rivers are Limpopo and Orange, and the veld is situated near the coast, so it has a moderate type of climate. Veld grasslands साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ फैला हुआ है, और क्योंकि ये समुद्र तट के पास है इसलिए यहाँ हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट ही पाई जाती है. Agriculture is not possible in the veld as it is a plateau area and the soil is infertile. क्योंकि ये प्लेटू एरिया है, पथरीला इलाका है, इसलिए यहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है. But the veld grasslands are rich in various minerals like gold, diamond and coal. Coal mines are common in Johannesburg. The diamond mines of Kimberley are well known on the western border of the veld. And the agro-based and mineral-based industries are also common here. Now next, life in tropical and subtropical forest region. In this we will talk about the Amazon basin and the Ganga-Brahmaputra basin. First of all, the Amazon basin. Amazon basin is the largest river basin in the world. It lies in South America, and about 2/3 of the region lies in Brazil and also occupies part of Peru, Ecuador and Colombia. And it is the world's largest and thickest tropical evergreen or rainforest. जो अमेजोन नदी है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में बहती है, और इसका जो बेसिन है मेनली वो ब्राज़ील और पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया देशों में फैला हुआ है. सबसे ज़्यादा कवर करता है ब्राज़ील को.
And the Amazon is the second largest river in the world next to river Nile. In respect of the volume of water, it is the world's biggest river. मीन्स लंबाई में अगर देखें तो अमेजोन सेकंड नंबर पर आता है आफ्टर नाइल, नील नदी के बाद। लेकिन अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से देखें तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि लंबाई ज़्यादा कवर करती है नील नदी, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर अमेजोन का सबसे ज़्यादा है। द क्लाइमेट ऑफ द अमेजोन बेसिन इज हॉट एंड ह्यूमिड। द एरिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू इट्स लोकेशन इन द इक्वेटोरियल रीजन। और क्योंकि अमेजोन बेसिन इक्वेटोरियल रीजन में है, पूरे साल भर यहाँ हाई टेम्परेचर होता है और साल भर यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। सो द अमेजोन बेसिन इज नोन फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड द ट्रीज हियर आर वेरी टॉल एंड थिक। देयर आर सेवरल layers of vegetation. The topmost layer of foliage is known as canopy. Below this there are two more layers of foliage consisting of shrubs and bushes. तीन तरह की यहाँ पर लेयर्स पाई जाती है। सबसे ऊपर कैनेपी, फिर श्रब्स और फिर bushes. And the vast forest area were cleared for setting up camp areas and constructing roads. और इसका जो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया है, आज वो डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ वनों की बहुत ज़्यादा कटाई की जा चुकी है। नाउ नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। द गंगा इज द मेजर रिवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द टू बिग रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ज्वाइन टुगेदर इन बांग्लादेश एंड फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों के द्वारा बनाया हुआ है। और गंगा नदी उत्तरांचल से हमारे देश में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के पठार से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश में एंटर करती है, पूरे असम के बीचों बीच से जाती हुई फिर बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में ये दोनों एक धारा में बहती है आगे, और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले वहाँ बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। एंड द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द गंगा डेल्टा इज कवर्ड विद मैंग्रोव फॉरेस्ट। These forests are dominated by a plant species locally known as Sundari, and that is why this area is named as Sundarban. इस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं क्योंकि सुंदरी नामक पेड़ यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द होम ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड द मोस्ट कॉमन वंस आर वन हॉर्न राइनोसोर एंड बंगाल टाइगर। And the soil of the Ganga Brahmaputra basin is very fertile and suitable for cultivation of various crops like rice, wheat, sugarcane, jute, etc. And agro-based industries like textile and sugar, etc. are common in this region. Town and cities of Haridwar, Allahabad, Varanasi, Patna and Guwahati are located on or near the river banks and are developing at a very fast rate. यही जो एरिया है हमारा देश का सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, बेस्ट फॉर क्रॉपिंग, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन भी हमारा इसी नॉर्दर्न प्लेन में ही है। और यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ यहाँ डेवलप हो रहे हैं क्योंकि यहाँ फर्टाइल लैंड है, प्लेन एरिया है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा वास्ट पॉपुलेशन का एरिया है और बहुत ही डेवलप एरिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा, एंड गुड बाय, टेक केयर, लेट वी सी इन द नेक्स्ट।